Okay, dear students, in this subject, you were studying about the isomerization, and you have studied in previous lecture of yesterday that isomers are of two types: constitutional isomers, stereoisomers, and on the other hand, these stereoisomers may further be divided into, uh, classified into further two types: the cis-trans isomers and the isomers of the chirality centers. In cis-trans isomers, there was examples of cis-2-pentene, trans-2-pentene, and some homework I have allocated to you students, and hopefully you will have done all this rehearsal to understand the cis-trans isomers as your homework uh, regarding the cis-1-bromo 3-methyl cyclobutane, trans-1-bromo 3-methyl cyclobutane. And then you studied about the enantiomers, identical molecules, superimposability, non-superimposability, and these were the some three-dimensional examples. Uh, and you learn about the how to draw the perspective formula and how to draw the Fisher projection formula. In perspective formula, you discuss these four examples, and the Fisher projection. I think in Fisher projection, you use the only two lines, the vertical line and the horizontal line. On horizontal line, you draw those bonds which are away from the viewer, yeah, away from the board, yeah, away from the your paper and plane. But on the vertical line, you draw those bonds which are towards you, are coming upward from the board, and but in perspective formula, these bonds which are coming from the board or viewer towards the viewer are highlighted by the wedge-shaped bonds, the solid blackish wedge-shaped these bonds of the hydrogen as shown in the example number 1. These upcoming bonds are represented in perspective formula with the wedge shape, while in Fisher projection these are denoted or drawn by the vertical lines. Then after it, there is one more term which you must have to learn to properly understand the stereo center and the stereogenic center. What is stereogenic center? A stereogenic center is an atom at which the interchange at which the interchange of the two groups produces a stereoisomer. A stereocenter, as shown in this example, in these carbons, uh, the stereocenter, because in this carbon, this is an atom where you, by changing the two groups, produces another stereoisomer, like yeah, if you change the bromo and methyl, you will get a new example. Okay,
we just switch over how you name these enantiomers. Today we will learn about the naming pattern of these enantiomers. There are two types of classifications, patterns to name these stereoisomers. The first one is the R and S system of the nomenclature. Dear participants, Yes, sir. बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जो हम पढ़ रहे हैं वो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ना? जी सर। Naming enantiomers are as system of the nomenclature, ये आप देख पा रहे हैं. Okay, in this RS system of the nomenclature, you have firstly ranked the groups bonded to the chirality center. हर मॉलिक्यूल में एक chirality center होगा. उस chirality center की पहचान ये थी कि एक chiral center वो होता है जिसके chiral center के कितने डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. 4 ग्रुप उसके साथ अटैच होंगे और 4 के 4 ही डिफरेंट ग्रुप्स होंगे. ये जो चारों डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच्ड हैं, इसकी वजह से जो सेंट्रल आपको यहाँ पे बॉन्ड नज़र आ रहा है, ये सेंट्रल बॉन्ड ब्लैकिश कार्बन है और इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं. इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो अटैच हैं, आपने इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स की प्रायोरिटी सेट करनी है. प्रायोरिटी सेट करनी है विद रेफरेंस टू देयर एटॉमिक नंबर. तो जो इसमें लोएस्ट ग्रुप है उसको आपने सबसे कम प्रायोरिटी पे रखना है. फर्स्टली यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, दिस हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ये जैसे नंबर 1 है, ये नंबर 4 है, दिस हैज़ द लोएस्ट प्रायोरिटी. मीन्स 4 नंबर पे जो एटम अटैच है वो सबसे स्मॉलर ग्रुप, स्मॉलर एटम जो है वो इस पे अटैच है. 1, 2, 3 और 4 हमने ये नंबरिंग किस बेस पे की है? हाईएस्ट मॉलिक्यूलर हाईएस्ट एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर ग्रुप जो है उसको आपने नंबर 1 कहना है और जो लोएस्ट वाला होगा उसे आपने नंबर 4 कहना है. इस तरह से उसके बाद जो लोएस्ट है
orient the lowest priority away from you. इनमें जो देखें, जो पिछली स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड पे, ये 4 जो है ये आपकी तरफ था, टूवर्ड्स द व्यूअर था, जो इस मॉलिक्यूल को व्यू कर रहा है, उस व्यूअर की तरफ, जो इस मॉलिक्यूल की तस्वीर कैमरे में लेने चाह रहा है, उस व्यूअर की तरफ ये 4 ग्रुप जो है वो उसकी तरफ है। ऊपर से प्लेन से या बोर्ड की स्क्रीन से या पेपर की स्क्रीन से या लैपटॉप की स्क्रीन से, ये मोबाइल की स्क्रीन से आपकी तरफ को, आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, ये जो 4 ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे इसको नाम देने से के लिए, ये फैसला करने के लिए, इसका नॉमेनक्लेचर को ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो मॉलिक्यूल है, इज इट आर नॉमेनक्लेचर या कि ये एस नॉमेनक्लेचर लिस्ट करता है इसमें, तो आर और एस का डिसाइड करने के लिए आपने सबसे पहले तमाम ग्रुप्स का ये एनालिसिस करना है। इसके साथ जो चारों ग्रुप्स अटैच्ड हैं, वो चारों ग्रुप्स में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, हाई प्रायोरिटी वाला कौन सा है, उससे कम प्रायोरिटी वाला कौन सा है, उससे कम प्रायोरिटी वाला कौन सा है, और उससे कम प्रायोरिटी वाला कौन सा है। ये प्रायोरिटी जो है ये किस बेस पे है, ये उसके एटॉमिक नंबर के बेस पे है, जो कि सेंट्रल कार्बन को अटैच है उसके साथ। अब यहाँ तो बॉल्स दिखाई दे रही है ना, लेकिन इन एक्चुअल इस मॉलिक्यूल में हर बॉल की जगह पे एक ग्रुप होगा। वो जो ग्रुप है, वो ग्रुप या हाइड्रोजन हो सकता है, या CH3 हो सकता है मिथाइल ग्रुप, या CH3CH2 इथाइल ग्रुप हो सकता है। तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, या कोई भी क्लोरो है, ब्रोमो है, फ्लोरो है, ये इनमें से कोई 4 ग्रुप्स हैं आपके पास। आपने ये देखना है कि सबसे बड़े एटॉमिक नंबर वाला मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड ग्रुप कौन सा है। So when you will decide this one is the highest priority group attached to this central carbon stereo center, then you will allocate the number 1 to that highest priority group. After allotting the number 1, you will search the number 2, a little bit lower priority group, then the number 3, furthermore little priority on base of the atomic numbers. And this has the lowest priority for, you may consider here the hydrogen. In this slide 4 is towards you, but in the next slide you have tilted the molecule in such a way that 4 group have shifted to was behind the screen, to away from you, away from viewer. Okay, when you adjust the molecule in such a way that the 4 priority, a little priority, and lowest priority group is behind the molecule, then you have see the molecule from the front side. And you will see this molecule from the front side at that time when the 4 group is behind the screen. Then the next step is you will move your imaginary line, imagination, you will move from number 1 to number 2, then number 3, and you will observe there are 2 possibilities. This movement may be clockwise or this movement may be anti-clockwise. If this movement will be the clockwise, then you will say the molecule have a R configuration. And if the this movement of your hand movement against the clockwise rotation, whether counterclockwise or anti-clockwise, then you will say the molecule is the S configurated.
In this way, RS configuration is the way to assign the molecule. This is the one way of the nomenclature of organic compounds, the organic molecules. For a while, I will allow unmute. ओके स्टूडेंट्स, आपको कुछ समझ आ रही कि क्या बात हो रही है यहाँ पे? प्लीज वन बाय वन प्लीज, नो डिस्टरबेंस। तो थोड़ी थोड़ी आई है, ज्यादा नहीं आ रही। डिस्टरबेंस, नो डिस्टरबेंस। आवाज कम आ रही है क्या? सर मैं कह रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही। आप बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं। तो हम उससे और डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये बताएं कि जो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, आवाज क्लियर है तो समझ आपको थोड़ी थोड़ी, पूरा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको स्क्रीन, सर थोड़ा ऊंचा बोल लें। तो बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये जो काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, सर इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज? जी, काउंटर क्लॉकवाइज का मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज ही है। यहाँ पे मैंने आपको असल में ये समझाया है। जी मैडम, ठीक, क्लास चल रही है। ओके, बारिश शुरू हो गई, 12 बजे बच्चों। पार्टिसिपेंट्स इधर ही हो सारे? यस सर। अच्छा जी, मैं आपको ये समझाता हूँ कि सपोज आपके पास ये मार्कर्स हैं। अगर आप यूँ समझें कि ये सेंटर पे जहाँ से मैंने इनको होल्ड ऑन किया हुआ है, यहाँ पे एक सेंट्रल कार्बन है। ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप, ये जो बाल पॉइंट मार्कर्स, ठीक है जी। इस पे, इस साइड पे ऊपर अगर एक फोर्थ मालिक्यूल हो तो ये एक टेट्राहेड्रल बनती है ना इसकी शेप। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये तीन यूँ मेरी तरफ हैं और ये फोर्थ वन जो है ये यहाँ से इस तरफ अटैच है, ये देखें, ये एक, ये तीन है, तीन ग्रुप्स, फोर्थ ग्रुप ये यहाँ पे है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सबसे हायर ग्रुप जो है, सबसे हायर ग्रुप जो है उसको आप नाम देंगे ग्रुप वन, उससे लोएस्ट को ग्रुप टू और उससे लोएस्ट को, सबसे हायर ग्रुप को आप नंबर वन। फिर आप, मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप किसी एक ग्रुप को, ये तीनों जो
ये तीनों जो हैं इसको आप यूं अप साइड पे कर दें, ये नीचे एक। तो आपने जब भी मालिक्यूल को देखना है यहाँ से ऊपर से देखें इस मालिक्यूल, ठीक है जी। तो जब आप मालिक्यूल को देखें तो ये जो इसका ब्लैक वाला है ये समझ लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है। तो इस बॉन्ड को, वो बॉन्ड जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, उस लोएस्ट प्रायोरिटी वाले बॉन्ड को आपने हमेशा जब आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हों तो अपने आप से अवे रखना है। यानी अगर मैं इसे कहूँ तो ये ब्लैक, यहाँ से ये वन वाला जो है वो वन वाला अवे होगा, और ये तीनों जो हैं ये आपकी तरफ होंगे। उसके बाद आप फैसला करेंगे कि इनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, उससे छोटा ग्रुप कौन सा है, और उससे छोटा ग्रुप कौन सा है। अगर आप इस सबसे बड़े ग्रुप से किसी चीज़ को या खुद को, एक लाइन को यहाँ से 2 पे फिर 3 पे लेके आए, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं सबसे बड़े ग्रुप से फिर सबसे छोटे की तरफ आऊँ, फिर उससे छोटे की तरफ आऊँ। मसलन सेंटर पे कार्बन था, इस सेंट्रल कार्बन पे आपने 3 ग्रुप अटैच थे, तीनों ग्रुप को आपने प्रायोरिटाइज कर लिया। एक को आपने नंबर 1 कहा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। दूसरे को आपने नंबर दिया 2 और तीसरे को आपने नंबर दिया 3। एक ग्रुप इस पे था स्मॉलर ग्रुप, वो इससे आपने पीछे कर दिया। अगर कोई स्मॉलर ग्रुप फ्रंट पे हो भी तो आपने इस तरह मॉलिक्यूल को पकड़ना है कि आपने उसकी पोजीशन चेंज करनी है ताकि वो वाला जो फ्रंट पे है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वो भी पीछे चला जाए। जब आप समझे कि आपने मॉलिक्यूल को इस अंदाज में रखा हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है कि उसका जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो बिहाइंड साइड द स्क्रीन है, तो अब आप इसको फ्रंट से व्यू करेंगे। जब फ्रंट से व्यू करेंगे तो जब से सबसे बड़ा प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप होगा उस पर आप चले जाएंगे, जिसको आपने नंबर 1 कहा हुआ है। आप 1 पे चले जाएंगे, 1 से आप फिर मूव करते हुए 2 पे आएंगे। जब आप 1 से मूव करते हुए 2 पे आएंगे, 2 पे फिर 3 पे आएंगे, तो ये जो आपकी मूवमेंट है 1 से 2, 2 पे 3, तो ये जो दायरा बनता है ये क्लॉकवाइज बनता है या एंटी क्लॉकवाइज बनता है, ये आपने देखना है। तो अगर तो वो क्लॉकवाइज है तो उसको आप कहेंगे कि ये आर ग्रुप है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे आप कहेंगे कि ये एस है। अब आपको कुछ दोबारा वो मॉलिक्यूल जब आप देखेंगे तो मैं भी समझने में कुछ थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपने ये 4 जो था प्रीवियस स्लाइड्स पे 4 फ्रंट पे था, बाकी 3 पीछे साइड पे थे, ठीक है जी। और अब आपने मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट किया, उसके बाद 4 जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन चला गया। अब आप 1 से चलते हुए 2 पे आए, 2 से चलते हुए 3 पे जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ये ऐसे ही है जैसे घड़ी के 12 बजे होते हैं, फिर 2 बजे पे आते हैं, फिर 3 पे। घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन पे मूव करती हैं वो नीडल ऑफ क्लॉक की तरह आप ये मूव कर रहे हैं, तो इसलिए से आप क्लॉकवाइज आर कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसे मॉलिक्यूल्स तमाम जिनका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो उसे आप एस कहते हैं। तो इस तरह से दुनिया जहान के तमाम मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आप अगर मॉलिक्यूल कायरलिटी रखता है, कायरल कार्बन उसमें है, तो आप उसको कहेंगे या तो ये मॉलिक्यूल आर होगा या ये एस होगा। तो ये आप उसकी एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो रख सकते हैं। इसके बाद अब पर्सपेक्टिव फार्मूला में आप कैसे नाम देते हैं। पर्सपेक्टिव फार्मूला में नेमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फार्मूला, रैंक द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन में आपने उनको वही जो रैंकिंग की
सबसे बड़ा कौन सा है, ब्रोमो है या इथाइल है? अब आपको एक और क्लैरिटी यहाँ पे होगी, ब्रोमो का कितना है एटॉमिक नंबर और कार्बन का कितना है? कार्बन 12 है, इसी तरह ये भी कार्बन 12 है। तो मैं ये कह रहा था कि इस कार्बन के साथ इधर कार्बन अटैच है, इस कार्बन के साथ इधर भी कार्बन अटैच है, तो दोनों चूंकि स्क्रीन शेयर हो रही है जी? कोई स्टूडेंट? नो सर, नहीं नजर आ रही। ये स्क्रीन नहीं नजर आ रही? ये क्या चक्कर? मेरी वीडियो नजर आ रही है? अब जी बच्चों, स्क्रीन अब शेयर हो गई है। अब स्क्रीन शेयर हो रही बच्चों के नहीं? हो रही है सर। ठीक है, ठीक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेमिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव फार्मूला, रैंक द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन जो है उसके साथ 4 ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं। पहले आपको जनरली वहाँ पे इस एग्जांपल में जो है आपने बात की है जनरल 1 2 3 बॉल्स अटैच हैं, इसमें कोई ग्रुप्स अटैच नहीं थे। तो अब यहाँ पे आपको उसकी एक एग्जांपल दी जा रही है। दूसरा ये कि ये पर्सपेक्टिव फार्मूला के ज़रिए आप इसको आर और एस का नाम देते हैं। तो इस में पहली एग्जांपल में आपने कहा कि रैंक द ग्रुप्स बॉन्डेड टू द एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन के साथ अब 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। तो मैंने ये कहा है कि जो ग्रुप CH3 है और जो ग्रुप CH2 CH3 है, इसमें और इसमें फ़र्क इतना है कि दोनों में कार्बन ही इस कार्बन के साथ अटैच है। तो लिहाजा इस लिहाज से कि डायरेक्टली जो अटैच है वो दोनों सेम हैं, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इस कार्बन के साथ आगे CH3 है, इस कार्बन के साथ आगे CH3 नहीं है, तीनों हाइड्रोजन्स हैं। तो लिहाजा इन दोनों में ज़्यादा जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो नंबर 2 हो गया, इसका नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है जी, पहला नंबर तो पहला काम तो आपने ये किया कि आपने प्रायोरिटाइज कर दिया, नंबरिंग काट दी और आपने इसको रैंकिंग जो है वो बना ली इसकी। सेकंड काम आपने क्या किया, इफ द ग्रुप एटम विद द लोएस्ट प्रायोरिटी इज बॉन्डेड बाय द हेच्ड वेज। अब ये एक सॉलिड लाइन वेज है, ये एक हेच्ड वेज है। अगर तो लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है जैसे कि हाइड्रोजन है, तो ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो आप देख रहे हैं कि हेच्ड वेज के साथ अटैच है। हेच्ड वेज का क्या मतलब आप यहाँ पे लेते हैं कि ये मालिक्यूल अवे है, दूर है, इसलिए इसकी जो तस्वीर है वो डॉटेड डॉट से बनाई गई है। ये वेज का मतलब है ये मालिक्यूल करीब है, आपकी तरफ है, बोर्ड से ऊपर को आ रहा है, ये CH3 है।
इस तरह आप इसे सेकेंडली जो पहला काम प्रायोरिटाइज करने के बाद सेकंड काम आप जो करते हैं वो जो भी ग्रुप पर्सपेक्टिव या हेच्ड वेज के साथ है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करता हूँ मैं। ये जो ब्रोमो है ना उससे मिथाइल की तरफ एरो बनाया है। कोई बात यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपको अगर क्लियर नहीं हो रही, वो ये कि इस मॉलिक्यूल में चूंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन सबसे स्मॉलर है और ऑलरेडी वो अवे फ्रॉम द व्यूअर है। अगर ये हाइड्रोजन लगा होता ना इस मिथाइल की जगह पे या ये हाइड्रोजन होता है इस इथाइल की जगह पे, तो उस वक्त आपको इस मॉलिक्यूल को पहले रोटेट करना था। मॉलिक्यूल जब रोटेट करते इस तरह से रोटेट करते कि ये वाला हाइड्रोजन पीछे चला जाता और ये मिथाइल अपनी पोजीशन कहीं और बना लेता इथाइल, फिर आपने फैसला करना था। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी सबसे लोएस्ट ग्रुप पीछे ही है, तो इस मॉलिक्यूल का फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसे आप डायरेक्टली ये एरो देखते हैं। बताएं इसमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इस कार्बन के साथ CH3CH2 इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप अटैच्ड हैं? आप ना ये जो स्टूडेंट है एक ही बोली जा रही है, बाकी भी कोई बात कर लें वन बाय वन। ये ब्रोमो जो है एक अटैच है इस कार्बन के साथ, CH3CH2 अटैच है कार्बन के साथ, मिथाइल अटैच है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ। ये जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन के साथ, इन चारों में से सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है? सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? ये इकरा खालिद आप बताएं, या अनम्यूट करें खुद को और बताएं। ये इधर ही हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर 15।